آن لائن فراڈ کے ذریعے شہری سے 29.5 لاکھ روپے ہتھیانے والے 3 پاکستانی اور 1 نائجیرین باشندے کو سائبر کرائم سیل نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان نے ای میل پر خود کو امریکن اسپیشل فورس کی خاتون آفیسر ظاہر کیا اور بھکر کے رہائشی محمد شریف سے $6 لاکھ دینے کا وعدہ کر کے 29.5 لاکھ روپے بینک سے منگوائے۔ ایس ایچ او سائبر کرائم سیل انسپیکٹر سجاد احمد نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ملزمان کو پکڑا، مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، آن لائن فراڈ کے ذریعے شہری سے 29.5 لاکھ روپے ہتھیانے والے 3 پاکستانی اور 1 نائجیرین باشندے کو سائبر کرائم سیل نے گرفتار کر لیا۔ فزیکل ٹیسٹ کے دوسرے مرحلے میں قد کی پیمائش میں کامیاب 13,146 امیدواروں کا دوڑ ٹیسٹ صبح 7 بجے ایف ٹی اے سٹی میں شروع ہوگا۔ دوڑ ٹیسٹ 6 سے 8 نومبر تک جاری رہے گا، جس میں 1,396 خاتون امیدوار بھی دوڑ لگائیں گی۔ دوڑ ٹیسٹ بھرتی بورڈ کی زیر نگرانی لیا جائے گا۔ اس دوران 2,000 سے زائد مرد اور خاتون اہلکاروں کو سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ اور کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ فیصل آباد میں ماسک پہننے پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ماسک نہ پہننے پر $100 جرمانہ کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ اس پر شہریوں اور تاجروں کا کیا رد عمل ہے، جانتے ہیں ذوالقرنین طاہر کی اس رپورٹ میں۔ ماسک نہ پہننے پر جرمانے کی تجویز پر ہی شہریوں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس کر عوام کو مارنے پر تلی ہے۔ ماسک نہ پہننے پر $100 جرمانہ کرنا ایک بڑا ظلم ہوگا۔ حکومت اگر جرمانے کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو مفت ماسک بھی مہیا کرے۔ جو ماسک خریدنے کے لیے $10 نہیں رکھتا وہ $100 جرمانہ کہاں سے دے گا؟ جو آدمی $10 کا ماسک نہیں خرید سکتا وہ $100 جرمانہ کہاں سے دے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ گھنٹہ کر کے کتنے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں جو صبح سے ان کو کھانے کے لیے بھی نہیں ملا، اور وہ $100 کا کہاں سے یہ جرمانہ ادا کریں گے؟ کچہری بازار سے تعلق رکھنے والی تاجر برادری نے بھی جرمانے کی اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ جرمانے کرنے سے کاروباری طبقے کا کام متاثر ہوگا، پولیس گاہکوں کو تنگ کرے گی۔ دیکھیں ایک طرف تو ریلیف دے رہی، دوسری طرف کہہ رہی $100 اس پہ جرمانہ دیا جائے، مگر ہم جرمانہ نہیں دے سکتے، ہر آدمی نہیں دے سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لازمی قرار دینا ہی ہے تو گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان میں آپ لازمی قرار دے دیں۔ اگر ماسک والا سین ہوا تو روزانہ کی بنیاد پہ انتظامیہ پولیس یہ ہمیں تنگ کرے گی، ہمارے کسٹمر کو بھی تنگ کرے گی، اور ہمارا روز کا جو کسٹمر ہے وہ خراب ہوگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اگر جرمانے کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو روزانہ کی بنیاد پر مفت ماسک دینے کے لیے سٹالز لگائے، پھر جرمانے کا فیصلہ کرے۔ کیمرامین محمد وقاص اور ساتھی رپورٹر حنان بخاری کے ہمراہ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کورونا کے حملے جاری، پنجاب میڈیکل کالج میں طلباء کے بعد نرسیں بھی کورونا کا شکار ہونے لگی۔ ایک ہفتے کے دوران الائیڈ ہسپتال کی 6 نرسوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ عزدار حسین رپورٹ کریں گے۔ پنجاب میڈیکل کالج میں طلباء کے بعد نرسز بھی کورونا کا شکار ہونے لگی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران الائیڈ ہسپتال کی 6 نرسوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر آصف شہزاد کا کہنا ہے کہ متاثرہ نرسیں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھیں، جس پر ڈپٹی کمشنر سے نرسنگ ہاسٹل PMSC ہاسٹل سیل کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً 5 سے 6 سٹاف نرسز پازیٹیو رپورٹ ہو چکی ہیں جو الائیڈ ہاسپٹل میں نرسنگ ہاسٹل ہے، تو ان 6 سٹاف نرسز کے ہم نے کانٹیکٹ سیمپل جو ہیں 20 سے، ہر سٹاف نرس کے 20 جو ہیں سیمپل ہم نے لے لیے ہیں۔ ڈاکٹر آصف شہزاد کا کہنا تھا کہ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کو بھی کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا۔ 12 روز کے لیے یونیورسٹی اور ہاسٹل بند کرنے کی سفارش بھی کی گئی تھی، مگر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ جن افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان کے دیگر ساتھی اور اہل خانہ کی سیمپلنگ کر رہے ہیں۔ ہاسٹل میں رہائش پذیر ہے یا وہ یہاں ہاسٹل سے اپنی ضلع میں کہیں اور رہائش پہ بھی اگر چلی گئی ہے تو ہم نے اپنی ٹیم بھیج کے وہاں جہاں اس کی اپنی رہائش ہے اس جگہ سے بھی 20 سیمپل ہم نے ٹریس کر لیے ہیں۔ محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو کورونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزدار حسین، فیصل آباد۔ بلدیاتی انتخابات کے اخراجات سے متعلق نئے قوانین سامنے آ گئے ہیں۔ انتخابی مہم میں 50 لاکھ روپے سے زائد خرچ پر پابندی عائد۔
लॉर्ड मेयर से काउंसलर तक कागजात नामजदगी की फीस 5 से 25,000 रुपए तक मुकर्रर की गई है। वसीम अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के कवानीन जारी कर दिए। इलेक्शन नेबरहुड एंड विलेज पंचायत काउंसिल्स के बरअक्स जमाती बुनियादों पर होंगे। इलेक्टोरल ग्रुप को सियासी जमात का इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लॉर्ड मेयर के इलेक्शन में अखराजात की हद 50 लाख रुपए होगी। काउंसिल्स के लिए 5 लाख, मेयर काउंसिल्स कॉर्पोरेशन के लिए 20 लाख, काउंसलर के लिए 3 लाख रुपए, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और तहसील कमेटी के चेयरपर्सन के लिए अखराजात की हद 5 लाख रुपए होगी। काउंसलर इंतखाबी मुहिम पर 1 लाख रुपए तक अखराजात कर सकेगा। लॉर्ड मेयर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की फीस 25,000, काउंसलर के लिए 15,000, मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 20,000 रुपए, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी के मेयर और तहसील काउंसिल के चेयरपर्सन के लिए 15,000, जबकि काउंसलर के लिए 10,000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नए कवानीन के मुताबिक एक उम्मीदवार 2 कागजात नामजदगी जमा करवा सकेगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की 22वीं ग्रेड में तरक्की और तबादला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने इनके एहसास में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। आरपीओ, डिप्टी कमिश्नर, सेशन जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान की शिरकत। कमिश्नर कहते हैं, अफसरान और स्टाफ का ममनून हूं जिन्होंने भरपूर ताउन किया। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। इशरत अली के एजाज में अलविदाई तकरीब चिनाब क्लब में मुनाकिद हुई, जिसका एहतमाम डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने किया। आरपीओ रिफत मुख्तार राजा, सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर, डीसी टोबा उमर जावेद, डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज शरीक हुए और इजहार ख्याल किया। डीजीएफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा, डीजीपीएचए आसमा एजाज चीमा, डायरेक्टर एंटी करप्शन इमरान रजा अब्बासी, एडीसी अफीफा शाजिया, फजले रब्बी, उमर मकबूल, मोहम्मद खालिद, एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद अयूब खान, तारिक महमूद पाशा, तारिक न्याजी, असिस्टेंट कमिश्नर्स अयूब बुखारी, फैसल सुल्तान, जैनुल आबिदीन, नुमान अली और दीगर शरीक हुए। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ रजा आवान, एमडी वासा जब्बार अनवर, डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद, सेक्रेटरी आरटीए जमीरुल हसन, डॉक्टर बिलाल अहमद, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान, डीओ सिविल डिफेंस राना अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर खालिद महमूद, मलिक मंजूर ने भी शिरकत की। जबकि कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती काम का मौका नहीं मिल सका। कोविड की वजह से जो डेवलपमेंट के काम है इतने अच्छी तरीके से नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह अभी आने वाले जो लोग जो भी जैसे कोरोना से फुर्सत मिलेगी तो इस पे तवज्जो देंगे, ताकि ये जो लोगों के मसाइल हैं रोड्स के दूसरे जो पैकेज आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला उससे हल होंगे। कमिश्नर इशरत अली ने कहा कि फैसलाबाद डिवीजन में अरसा तैनाती को जिंदगी का सरमाया समझता हूँ। कोरोना में अफसरान और स्टाफ ने खतरात का भरपूर मुकाबला किया। बस उनसे यही बात होती है, पहले भी यही बात है और अब भी कि आम आदमी की खिदमत करें और उनके लिए आसानी पैदा करें। कमिश्नर ने उलमा किराम, ताजरों, सनतकारों, वकला, मीडिया नुमाइंदगान और दीगर तबकात के ताउन को सराहा। जबकि अलविदाई तकरीब मुनाकिद करने पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर कमिश्नर को फूल पेश किए गए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और गंदम की पछीती बवाई से पैदावार में कमी होगी। महकमा ज़राअत तौसी ने खतरे की घंटी बजा दी है। काश्तकारों को चौकस रखा जाए और बवाई बर वक्त मुकम्मल करवाई जाए। कमिश्नर ने महकमा ज़राअत तौसी को हुक्म दे दिया है। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। इशरत अली की जेर सदारत एग्री एडवाइजरी का इजलास हुआ। डायरेक्टर ज़राअत तौसी अब्दुल हमीद ने ब्रीफिंग में बताया कि डिवीजन भर में 20,34,000 एकड़ पर गंदम काश्त हो रही है। 1 अक्टूबर से नवंबर तक आगाही मुहिम जारी है, जिससे 2300 देहात मुस्तफीद हो रहे हैं। फी एकड़ बीज में 1200 रुपए तक रियायत दी जा रही है, जबकि नोटिफाइड खादों पर रियायत होगी। मेंबर्स किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक और चौधरी नजीर अहमद ने बताया कि गंदम इकट्ठी करने के मामले में काश्तकार का बीज भी घरों से उठा लिया गया, जिससे काश्त में मसाइल का सामना है। डायरेक्टर ने इस अंदेशे का इजहार किया कि बासमती चावल की फसल ताखीर से पकती है, जिसके बायस गंदम की पछेती पैदावार कम हो रही है। डिप्टी डायरेक्टर खालिद महमूद ने बताया कि इस साल भी गंदम लेट काश्त हुई तो बहरान पैदा होगा। काश्तकारों को चाहिए कि वो जो है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक काश्त मुकम्मल कर लें। अगर हम इसी एक फैक्टर को कंट्रोल कर लें तो हमारे पास गंदम इतनी सरप्लस हो सकती है कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी घरेलू जरूरियात पूरी करके।
ब्रीफिंग में बताया गया कि कई अनवा में रस्ट की बीमारी से भी गंदम मुतासिर होने का अंदेशा है। कमिश्नर ने कहा कि काश्तकारों को चौकस किया जाए, बवाई बर वक्त मुकम्मल करवाई जाए। इजलास में महकमा ज़राअत के अफसरान भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एजुकेशन अथॉरिटीज के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एजुकेशन अथॉरिटीज ने तरक्याती मंसूबों पर ऑडिट जनरल की जानिब से ऑडिट पैरे का जवाब ही नहीं दिया। फैसलाबाद समेत सूबा भर में एजुकेशन अथॉरिटीज की तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तगियों का मामला। एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। तरक्याती मंसूबों पर ऑडिट जनरल की जानिब से ऑडिट पैरा लगाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने जवाब देने की बजाय मामले को नजरअंदाज कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज से 3 माह कबल जवाब मांगा गया था। वासा फैसलाबाद के बिजली के बिल हुकूमत पर बोझ बनने लगे। 65 करोड़ रुपए का बिल वाजिबुल अदा। हुकूमत ने सोलर सिस्टम लगाने का हुक्म दे दिया। वासा करोड़ों रुपए खसारे में है, जबकि बिजली का माहाना बिल 8 से 9 करोड़ रुपए के माबैन है। कंपनी के बिलों की अदायगी हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर हो गई है। 6 माह में फेस्को को वाजिबुल अदा बिल 65 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गया है। इस मसले के हल के लिए चीफ सेक्रेटरी ने वासा के ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस को फौरी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा कार मरहलावार बढ़ाने का फैसला किया गया। सेहत इंसाफ कार्ड और गरीब अफराद के इलाज मुआवजे की तफसीलात पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। पहले मरहले में 51 लाख से जायद खानदानों को कार्ड फराहम किए गए। गरीब और मुस्तहिक खानदानों को सेहत कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। वो दिन दौर नहीं जब सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलतें हर शहरी को मैसर होंगी। सरकारी मुलाजमीन, मदारिस के तलबा और असातिज़ा, सहाफ़ियों और दीगर तबकात को भी सेहत इंसाफ कार्ड दिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड्स के मुंतज़िर व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 25,000 स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए। फैसलाबाद में 70,000 से ज्यादा स्मार्ट कार्ड्स कई महीनों से इल्तिवा का शिकार थे। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के महीनों से इल्तवा का शिकार स्मार्ट कार्ड्स दोबारा बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। 25,000 स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद का कहना है कि मजमूई तौर पर 70,000 से ज्यादा स्मार्ट कार्ड्स ज़ेरे इल्तवा थे। जो हमारा बैकलॉग था उसका 1/3 तो हमारे पास वैसे भी आ चुका है और डिलीवरी भी उस स्पीड से जा रही है। तो विद इन दिस मंथ उम्मीद है कि सारा बैकलॉग हमारे पास आ जाएगा और डिलीवरी का हमने जो स्पीड इसी वक्त अडॉप्ट की हुई है उसके मुताबिक ये इंशाल्लाह साथ साथ डिलीवर भी हो जाएं। मौजूदा हुकूमत ने व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन बुक की जगह स्मार्ट कार्ड्स मुतारिफ करवाया था, मगर स्मार्ट कार्ड्स गुज़श्ता 8 महीनों से लटके हुए थे। शहरी कार्ड्स ना मिलने परेशानी का शिकार हो रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना है कि बाकी रह जाने वाले स्मार्ट कार्ड्स भी रवां महीने के दौरान ही बन जाएंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। ट्रेनों की आमद और रवानगी में ताखीर के बायस मुसाफिर परेशान। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में गुज़श्ता साल की निस्बत मुसाफिरों की तादाद में 2,20,000 कमी सामने आई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में गुज़श्ता साल की निस्बत 2,20,000 मुसाफिरों ने कम तादाद में सफर किया। रेल के सफर पर मुसाफिरों के बढ़ते हुए अदम एतमाद ने महकमे के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मुसाफिरों की तादाद में कमी के बायस रिकवरी भी खतरनाक हद तक कम हो गई। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट हेडक्वार्टर लाहौर को भेज दी। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मुसाफिरों का रेलवे पर अदम एतमाद महकमे की सुस्ती का सबूत है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट मकसूद अहमद ने मुसाफिरों की तादाद में गुज़श्ता साल की निस्बत कमी की वजह मुल्की सूरत हाल कोरोना को करार दिया। ट्रेनों का शेड्यूल हमारा अपसेट था। स्टॉपेज ऑफ ट्रेन जो हैं लोकल वगैरह वो काफ़ी ख़त्म कर दिए गए थे, तो अभी नया टाइम टेबल में बहाल कर दिए गए हैं। तो काफ़ी अब वो पैसेंजर्स जो हैं अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह अभी बेटर हो जाएगा। महकमा रेलवे में अगर यही सूरत हाल बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं जो रेलवे की रही सही साख मुतासिर कर सकते हैं। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
गारमेंट्स के कारोबार से मुंसलिक तबका भी मौजूदा हालात से परेशान। ताजिर कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे और कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। फजील अहमद रिपोर्ट करेंगे। कारोबारी हालात में जहां कपड़े के ताजिर परेशान हैं, वहीं गारमेंट्स के कारोबार करने वाला तबका भी परेशान है। गारमेंट्स की मार्केटों में भी हू का आलम है। सदर अंजमन ताजरान मंटगोमरी बाजार रजिस्टर्ड हाफिज ताहिर जमील का कहना है कि सीजन होने के बावजूद ग्राहक मार्केट का रुख नहीं कर रहे। महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं। हुकूमत टैक्सेस में कमी लाए। यकीन करें, नए कपड़े सेल पे लग गए हैं, सेल पे लग गए हैं। नए जो गारमेंट्स के जो नए आर्टिकल आए हैं वो सारे सेल पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बाजार में गाहक नहीं है। कारोबार में मंदी की वजह से परेशान ताजरों की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने और ताजरों को टैक्सेस में रिलीफ देने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। चिन्योट में किसान बोर्ड और जमात इस्लामी का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। बामर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। किसान बोर्ड और ज़लई अमीर जमात इस्लामी मियां अब्दुल कय्यूम हंजरा ने चिन्योट में किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल सेक्रेटरी अवामी जस्टिस पार्टी पाकिस्तान राना सईद राशिद मंज ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि चारों सूबों की सकाफत मुख्तलिफ मगर पुलिस कल्चर एक है। इस रवैये की जो कल किसानों के साथ किया गया, जो 80% मुल्क की आबादी के जो किसान नुमाइंदे हैं उनके साथ किया गया, उनकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और पंजाब हुकूमत के रवैये की और फिर मकामी इंतजामिया जो उनके असल मसाइल हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं। चौधरी इस्लाम, जुल्फिकार अली शाह, मेहर मकसूद, सोहराब लूना और तुफैल लूना और दीगर ने शिरकत की। दीगर ने कहा कि किसानों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। निहत्ते किसानों को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया। इन इकदामात की हम मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जो किसानों के रहनुमा अभी तक गिरफ्तार हैं उनको फिल फौर रिहा किया जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसान एहतजाज कर क्यों रहे हैं, किसानों के मुतालबात क्या हैं। हमारा मुतालबा ये है कि गंदम का रेट 2000 रुपया फी मुकर्रर किया जाए। ये जो 600 किसान बोर्ड के रहनुमा पूरे पंजाब से गिरफ्तार किए गए हैं और ख़ासकर सैयद जुल्फकार अली शाह और जो भी चिन्योट से किसान बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट सदर को उठाया गया है, उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। किसान रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मुकामी इंतजामिया असल मसाइल पर तवज्जो दे, किसानों के जायज मुतालबात पर लाठी चार्ज की शदीद मजम्मत करते हैं। पूरे पंजाब से 600 किसानों को घरों से गिरफ्तार किया गया। किसानों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। किसान बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, बुजदार हुकूमत मुर्दाबाद, बुजदार हुकूमत मुर्दाबाद। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन और गन्ने की कीमत 300 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 श्री। फैसलाबाद में आइंदा माह नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों के लिए सिटी तंजीम का मुशावरती इजलास, तंजीमी ओहदेदारान और मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। कन्वेंशन को कामयाब बनाने का अज़म जाहिर किया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद में कन्वेंशन की तैयारियों के हवाले से मुस्लिम लीग नून कारपोरेशन की मेजबानी में मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नून लीग के डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, जिलाई सदर मियां कासिम फारूक, MPA राना अली अब्बास, मुस्लिम लीग नून कारपोरेशन के सदर शेख एजाज अहमद, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां जियाउर रहमान, साबिक MP आजाद अली तबस्सुम, राना एहसान अफजल, साबिक MPA इलियास अंसारी, MPA शुएब इदरीस, साबिक चेयरमैन वासा मियां इरफान मन्नान और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जिलाई सदर उस्मान अशरफ गुज्जर, सिटी सदर आतिफ कसाना ने शिरकत की। डिविजनल सदर और साबिक वजीर ममलिकत हाजी अकरम अंसारी का कहना था वर्कर्स कन्वेंशन के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। 3 दिसंबर को हमने वर्कर कन्वेंशन फैसलाबाद में करना था, उसके लिए आज हमने कोई राय लेनी थी तमाम हमारे भाइयों की कि हमने वेन्यू हमारा कौन सा होना चाहिए शहर के अंदर और डेट को भी फाइनल करना था। वर्कर कन्वेंशन जो है वो तसलसल है मुल्क पाकिस्तान के अंदर जारी खिलाफ जो मूवमेंट चली हुई है PDM के प्लेटफॉर्म से, उसका ये एक तसलसल है। इजलास में फैसला किया गया कि वर्कर्स कन्वेंशन 3 दिसंबर को होगा, जिसमें मरकजी क़यादत शिरकत करेगी। तमाम टिकट होल्डर्स और तंजीमी ओहदेदारान इसकी कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ये जो फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन हो रहा है उसके हवाला से एक मुशावरती इजलास था, जिसमें शहर फैसलाबाद के तमाम MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स और तंजीमी ओहदेदारान बशमूल जो विंग्स हैं, हमारे यूथ विंग हैं, माइनॉरिटी विंग हैं, उन्होंने भी शिरकत की।
ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन होगा और इंशाअल्लाह ताला ये एक सेमी फाइनल मैच होगा लाहौर के जलसे से पहले, और लाहौर के जलसे की ये एक रिहर्सल होगी और इसमें हम पूरे ज़िले और सिटी को इंशाअल्लाह चार्ज करेंगे। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था वर्कर्स कन्वेंशन रिकॉर्ड साज होगा और साबित करेगा कि फैसलाबाद आज भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और यहाँ के बासी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। जंग में फेस्को के लिए अपनी तनसीबात की हिफाजत करना मुश्किल हो गया। रवा साल के दौरान 90 लाख रुपए से जायद मालियत के ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए गए। पुलिस की जानिब से चोरों का सुराग लगाना दूर की बात, मुकदमात भी दर्ज न किए जा सके। मुबशिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। फेस्को झंग सर्कल में चोरों और डाकुओं की रात से फेस्को अफसरान परेशान हैं। फेस्को आदादोशुमार के मुताबिक 14 माह के दौरान सर्कल में 90 लाख मालियत के 66 ट्रांसफार्मर और मटेरियल चोरी किए गए। सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर झंग फर्स्ट डिवीजन में चोरी हुए। टोबा, गोजरा और कमालिया में भी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें हुई। ये अब सर्दियों का मौसम है, इसमें फॉग और स्मोक की वजह से चोरों को वारदात करने का मौका मिल जाता है। इसलिए मैं आवाम से सबसे पहले तो ये दरख्वास्त करूँगा कि जैसे ही कोई उनके इलाके की बिजली बंद हो या उन्हें कोई मशकूक सरगर्मी नज़र आए तो फौरी तौर पर हमारे कंप्लेंट सेंटर 118 पे या पुलिस के कंप्लेंट सेंटर 15 पे आप इतला करें। ट्रांसफार्मर और मटेरियल चोरी के 40 मुकदमात 14 माह गुजरने के बावजूद दर्ज न हो सके। सिटी 41 ने खबर नशर की तो डीपीओ सरफराज खान विर्क ने नोटिस लेते हुए फौरी इंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया। आपने निशानदेही की है कि 40 के करीब जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि फेस्को की जितनी भी दरखास्तें आती हैं वो हमारी तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि उस पर फौरी FIR की जाए। बहुत सारे केसेस में जो FIRs हुई भी हैं उसमें चलान भी लोग हुए हैं, उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। तो ये 40 केसेस पे भी मैं फौरी तौर पर एक्शन ले रहा हूँ, इस पर FIRs भी करवा रहे हैं। हम इसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनको गिरफ्तार भी करेंगे। फेस्को हुक्काम ने शहरियों से अपील की कि ट्रांसफार्मर चोरी करने की कोशिश की जाए तो फौरी फेस्को और पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करें ताकि चोरी का सदेबाब किया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब अवैस अहमद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान ने खिताब किया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर DBA शहजाद बशीर चीमा का कहना था कि पार्किंग और हाउसिंग सोसाइटी का मसला संगीन सूरत अख्तियार कर चुका है, जिस पर इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। जिस बार के लिए जरूरत है हम दोनों भाई यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ गोजरे से भी आए हैं, टोबा टेक सिंह से भी लोग हैं, फैसलाबाद से भी हैं। हर जगह के लोगों के मसाइल के हल के लिए प्रायोरिटी आज आप लोगों की है, फैसलाबाद वालों की। लेकिन जो ये कहेंगे हम इंशाअल्लाह जनरल इश्तियाक खान का कहना था कि कोशिश है कि पेश करदा मसाइल का हल निकाला जाए। 2 साल में मुतअद्दिद बार एसोसिएशंस को फंड्स दिए गए हैं। उनका कहना था कि नए वकला को चाहिए कि वो लाइब्रेरी से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से लाहौर को छोड़ के बाकी बार में से सबसे बेहतरीन हमारी लाइब्रेरी है, ताकि यंग जो वकला आए हैं उनके लिए बेहतर मौके जो हैं वो लर्निंग के बनाए जाएं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस का कहना था कि वकला वफद को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुलाकात करनी चाहिए। अदालतों का एहतराम जरूरी है, अफराद की बजाय इदारों को मजबूत किया जाए। पंजाब भर में वकला को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। हाउसिंग स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। डिविजनल लेवल के ऊपर हाउसिंग स्कीम बनाई जाएंगी, इंडिजिनस स्कीम होगी और वहां छोटे प्लॉट जो हैं ताकि एक आम वकील जो है वो भी आसान किस्तों पर खरीद सके उसको। वकला ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मसाइल के हल के लिए कोशिश करने की दरख्वास्त भी की। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर आशिक अली रिटायर्ड हो गए। स्कूल प्रिंसिपल सईद अहमद जफर और दीगर असातिज़ा ने इस मौके पर तकरीब सजाई, जिसमें उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए नेक ख्वाहिशात के साथ उन्हें अलविदा किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर आशिक अली मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट पर स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई। आशिक अली का कहना था कि उन्हें फख्र है कि इस स्कूल में तालीम हासिल की और यहीं पर बतौर टीचर फराइज सर अंजाम दिए। उन्होंने असातिज़ा की मोहब्बत का भी शुक्रिया अदा किया। आज भी इंशाल्लाह स्कूल ने वही म्यार बरकरार रखा है और ये असातिज़ा की वजह से कि अल्लाह ताला ने स्कूल में ऐसे असातिज़ा भेज दिए, ऐसे आते हैं कि जो उस म्यार को गिरने नहीं देते इंशाल्लाह।
स्कूल प्रिंसिपल सईद अहमद जफर व दीगर असाजा ने टीचर आशिक अली को फूलों के हार पहनाए और तोहफे दिए। सईद अहमद जफर का कहना था कि असाजा के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। आशिक अली की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल आसिफ शहजाद, सदर पास पंजाब मियां सईद व दीगर ने भी आशिक अली की तालीमी खिदमात को सराहा। टीचर की जितनी सर्विसेज होती हैं ना, उनको ट्रिब्यूट, उनको खराज तहसीन पेश करने का इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं होता। और हम इस रवायत को, जब से ये स्कूल बना है और मुझे 15-16 साल हो गए हैं, हम इस रवायत को बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। इनके जाने का आज हमें भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही चलते थे जैसे ये कोई इदारा नहीं बल्कि आपस में भाइयों का एक मुकाम है। आशिक अली साहब, चूँकि मेरी सर्विस अभी 1 साल हुई है स्कूल में, लेकिन बहुत ही मेहनती और मुखलिस और अच्छा मशवरा देने वाले टीचर मैंने पाए हैं। असाजा ने टीचर आशिक अली को नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया। इस मौका पर स्कूल असाजा की तरफ से ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। मुस्तफाई फोरम इंटरनेशनल की जानिब से SOS चिल्ड्रन विलेज फैसलाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। यतीम बच्चों में इनामात और तोहफे तकसीम किए गए। सुल्कनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तहाइफ पाकर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे की खुशियां काबिल दीद रहीं। चेयरमैन मुस्तफाई इंटरनेशनल राना सजाद मुस्तफाई का कहना था कि तकरीब का मकसद माशरे को बच्चों की कफालत की जानिब माइल करना है। मुखय्यर हजरात को चाहिए कि बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी ले। बच्चों में इल्म की रोशनी को आम करना हो, बेसहारा बच्चों की मदद गार साबित होना हो, तो मुस्तफ़ाई फ़ोरम के हमारे रज़ाकार मुस्तफ़ाई खिदमतगार हमा वक़्त कोशां रहते हैं कि हम अपने हिस्से की शमा जलाएं। डायरेक्टर SOS विलेज नदीम अमजद का कहना था कि बच्चों को तहाइफ देने पर मुस्तफ़ाई इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी के मशकूर हैं। थोड़ी सी काविश है, अल्लाह इसको कबूल करे अपने बारगाह में और आप लोगों को और तौफीक दे और हिम्मत दे और हमारे साथ ताउन जारी रखें। इन बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आप इसी तरह आते रहें। अल्लाह आपको भी कामयाबी और इसका अजर दे। और इन बच्चों शुरका का कहना था कि SOS विलेज के बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हमें चाहिए कि इनकी ज़रूरियात और खुशियों का ख्याल रखें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जुल्कनैन ताहिर, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म